warm welcome to my YouTube channel NK Tutorial. This is Nushat and I'm teaching you maths of NCERT. You know that till now I was teaching maths of class 8. Since the session is changing, अब सेशन चेंज हो रहे हैं, बच्चे क्लास 8 से अब 9 में जा चुके हैं. मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ग्रेड अप कर लूँ, क्लास 8 से क्लास 9 में मैं मीन्स क्लास 9 के बच्चों को मैं भी पढ़ा लूँ. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ class 9, that is number system. So it is our introduction class. हमारी introduction class है. So let's see. First of all हम देखेंगे कि इस introduction class में मीन्स चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं. ओके, सो लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम. सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर आते हैं. नंबर यू नो एवरीबॉडी नोज नंबर. ओके, so let's understand different types of number. कौन कौन से नंबर हैं जो हमें इसमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं. तो let's see first of all हम देखते हैं. You know numbers में we have to cover natural number, whole number, you can also understand odd number, prime number, composite number, First of all, let's understand what is natural number. हम natural number किसे कहते हैं. You know all the counting number starting with 1, वे सारे counting number जो 1 से शुरू होते हैं और infinite तक मीन्स infinitive तक जाते हैं, that is called natural number. For example here it start from 1, 2, 3 so on till infinity means another. Okay, and you know that natural number is denoted by capital N. Natural number को हम capital N से denote करते हैं. Got it? Now next one is whole number. All the counting number starting with 0. 0 से start होने वाले counting number को हम whole number कहते हैं. You know 0, 1, 2, 3 so on till infinite. Okay? Remember one thing here that all natural number can be whole number. सारे natural number whole number हो सकते हैं, but all whole number cannot be natural number. सारे whole number natural number नहीं हो सकते because whole number 0 is whole number. 0 एक whole number है जो कि natural number नहीं हो सकता, लेकिन natural number can be whole number. Natural number whole number हो सकते हैं. Natural number is denoted by capital N and whole number is denoted by capital W. Got it? Understood? Now next one is odd number. What is odd number? You know the number which ends with the number ending with 1, 3, 5, 7 और 9. Okay? वैसे नंबर जो 1, 3, 5, 7 और 9 से एंड करते हैं they are odd number. For example 41, 73, 25, 37, 49. These all are odd number. ये सारे odd number है because it is ending with 1, 3, 5, 7, 9. Got it? Understood? Now let's understand odd number we have done. और हम साथ में even number भी cover up कर लेते हैं. Even number. What is even number? Even number किसे कहते हैं? We know odd number. आजकल you know लॉकडाउन में गाड़ियां जो हमारे थे या पॉल्यूशन इन दिल्ली, जब पॉल्यूशन की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो ऑड इवन के यूज हुए थे. ऑड इवन के लेवल पे मीन्स ऑड इवन वाली गाड़ियां चलती थी. यू नो लेट्स अंडरस्टैंड इवन किसे कहते हैं. यू नो देन यू नो द नंबर विच एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8. द नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 और 8 आर नोन एज इवन नंबर्स. वैसे नंबर जो 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 30, 24,
32, 56, 78. Just look here, 0, 2, 4, 6, 8. These are ending with 0, 2, 4, 6, 8. So they are even number. ये 2 से डिविजिबल नहीं होते, 2 से डिविजिबल होते हैं. इवन नंबर 2 से इजिली डिवाइड हो जाते हैं, बट जो हमारे ऑड नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते. क्लियर? आर अंडरस्टैंडिंग? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. तो लेट्स प्रोसीड. अब हम आगे बढ़ते हैं. Even odd completed. So next is prime number. What do you mean by prime number? You know, the number other than 1. Other than 1. 1 को छुड़ाकर वे सारे नंबर which is divisible by 1 or itself, जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, they are called prime numbers. For example, divisible by 1 और itself, जो 1 और सेल्फ से डिवाइड हो, that is called prime number. लेकिन 1 को छुड़ाकर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 is not a prime number. 1 prime number नहीं है. ओके, सो 2, 3, 5, 11, 13, 17, 23, 37, so on. ओके, these are prime number. बिकॉज ये ऐसे नंबर हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते. ये सेल्फ डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं. गॉट इट? क्लियर है? नो लेट्स सी कंपोजिट नंबर. अब हम करेंगे कंपोजिट नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? देन द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. वैसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. गॉट इट? जस्ट लुक हियर. हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. Having more than 2 factors. 2 factors. You know, 2 से ज़्यादा factors हो. Example, just you know, 8 कितने factors हैं? 1 के टेबल से, you know, all numbers are divisible. 2 के टेबल में भी आता है 4 and 8. कितने factors? 1, 2, 3, 4. So it is a composite number. Okay. Even 6 क्या है? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर. लेट्स सी. डिविजिबल बाय 1, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी. सो इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4. मोर देन 2 से ज्यादा है. सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. ऑन द अदर हैंड हम 5 लेते हैं. लुक हियर, 5 कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 5. It's not a composite number. It is prime number because it has only 2 factors, 1 and itself. Clear है? Is it clear? So now let's see the next. और हम देखते हैं आगे और भी टॉपिक्स जो हमें कवर अप करने हैं. नेक्स्ट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. ओके, नेक्स्ट इज rational number. Then a number in the form of p by q. A number in the form of p by q. A number in the form of p by q. Where p and q are integers. Where p and q are integers and q is not equal to 0. Okay, let's understand rational number. Okay, in Hindi it is called परिमेय संख्या. Okay, so a number in the form of p by q, वह नंबर जो इस फॉर्म में हो, p by q के रूप में. जस्ट लुक हियर, 2 by 3 p by q. p by q. Okay, it is also called numerator. अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं and this is called denominator. The part of the fraction, okay, upper part of the fraction is called numerator and the lower one is called denominator. Okay, but you know, since it is in rational number in the form of p by q, but q should not be equal to 0. लेकिन q हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. Just look here, 0 can be divided by 1.
इट कैन बी बिकॉज 1 हमारा है हिडन है, बट डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है n and d, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए ये, ओके 2/0 दिस, ये डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होना चाहिए, यू नो व्हाई, बिकॉज इफ इट हैपेंस देन इट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, ओके एंड इट विल नॉट बी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इरेशनल नंबर, अब हम जानेंगे इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ओके देन यू नो सेम वे इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, देन हियर द सेम वे यू नो रेशनल नंबर को हम z से रिप्रेजेंट q से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके यू नो irrational number what, you know the number which cannot be written in the form of p by q, जिसे हम p by q के रूप में रिटर्न नहीं करते, ओके एंड which is not equal to 0 means simply जब p by q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करते then that is called irrational number, you know for example √2, √3, √5 these all are irrational number, okay you know because under root है, okay so it is not means under root अगर ये perfect है, for example √4 then you know √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इसके नीचे 1 हिडन है, so it is a रेशनल नंबर, √4 हमारा रेशनल नंबर है, बट √2, √3, √5 जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते दे आर इरेशनल नंबर, क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंटीजर, इंटीजर्स किसे कहते हैं, यू नो इंटीजर्स, इंटीजर इज एक्चुअली डिनोटेड बाय z, इसे हम z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से, देन यू नो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वांटिटी नंबर, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वांटिटी नंबर, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वांटिटी नंबर together with 0 are called integers। वे सारे क्वांटिक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिक नंबर जिसमें ओके 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिक नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। जस्ट लुक हियर थ्रू अ लाइन के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on, -1, -2, -3, -4, -5 so on, okay this is positive, ये पॉजिटिव क्वांटिक नंबर है, दिस साइड पॉजिटिव क्वांटिक नंबर एंड द लेफ्ट साइड इज नेगेटिव क्वांटिक नंबर, माइनस में है नेगेटिव क्वांटिक नंबर एंड दिस इज 0 which is whole number, okay so all the positive and negative quantic numbers together with 0 okay are called integers, okay and integers are denoted by capital Z, okay now let's understand some more topics जो हमें cover up करने हैं, okay now let's decimal expansor हम पढ़ेंगे। decimal expansor कितने तरह के decimal expansor होते हैं? decimal expansor there are two types of number, okay numbers with decimal and numbers without decimal। decimal expansion में हम पढ़ेंगे कितनी तरह के होते हैं। then this is terminating decimal number, non-terminating decimal number, non-terminating decimal number, no okay terminating decimal number क्या है, okay then terminating decimal number means the decimal number which comes to end, जिसकी end हो जाती है, that is called terminating number means जिसके remainder 0 आता है, that is called terminating। for example 1.2 okay क्या है terminating, okay terminating है, इसकी end हो जाएगी। just you can understand here also 10 divided by 5
सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल कम 0.5। ओके, और हम इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं 10 0 पॉइंट हियर पुट करेंगे 10 5 50। ओके, सो 0.5 मीन्स इसकी एंड में आती है, इसकी रिमाइंडर क्या आता है 0, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, its remainder is 0, so it is terminating decimal number, and the decimal number whose remainder is not 0, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आते वो टर्मिनेट करते हैं। ओके, then that is called non terminating decimal number। for example 1.2 1 2 कुछ ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं, सेम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, एंड देयर आल्सो सेम रिपीटिंग, यानी सेम रिपीट होती है। सो फॉर एग्जांपल 1.6666 these are terminating, okay, and repeating, sorry non terminating but repeating, एंड नहीं हो रही है और रिपीट हो रही है, सो यू कैन राइट डाउन हियर 1.6 because it is repeating 666 coming again and again, so it is non terminating and repeating नॉन टर्मिनेटिंग एंड भी नहीं होती है इसकी, और रिपीट भी सेम डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। ओके, एंड देयर आर आल्सो सम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, कुछ ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं ओके विच इज नॉट रिपीटिंग, जो रिपीटिंग नहीं होती, नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है 1.2, फॉर एग्जाम्पल 2.1 2 3 4 5 6 मीन्स नंबर जो हमारे आ रहे हैं आफ्टर डिवाइडिंग दे आर कमिंग डिफरेंट वे डिफरेंट आते हैं, दे आर नॉट रिपीटिंग, वे रिपीटेड नहीं हो रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं हो रही, बट हियर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी है, सेम नंबर सेम डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। और कौन से टॉपिक हम इसमें कवर अप करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। कुछ हमें एक्सपोनेंट्स लॉज को भी इसमें अंडरस्टैंड करने हैं। 1.6 में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी हैं which we have to follow, laws of exponent, okay, like a to power m into a to power n is equal to a to power m plus n। when bases are same, जब bases same है और multiple में है, okay, power different है, then this their power is added, okay, other is a to power m divided by a to power n, then here सेम बेस डिफरेंट पावर और डिवीजन में है, देन पावर इज सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट वन a by b to power m is equal to a to power m by b to power n। next is a to power 0 is equal to 1, got it। next one a to power m and a to raised to power m and again raised to power n, then it is called a raised to power m into n। हम simply multiply कर देते हैं। okay, so these are the laws of exponent which we have to also cover in this chapter। also now let's understand rationalization। अब हम इसमें एक और टॉपिक कवर अप करेंगे जिसे कहते हैं rationalization, which is very new for you, जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, क्लास 9 के लिए बिल्कुल न्यू है। okay, let's understand rationalization। रेशनलाइज करना। ओके, हियर 1/√a वी हैव टू रेशनलाइज a। यहाँ पे हमें 1/√a को रेशनलाइज करना है। यू नो रेशनलाइज हम किस तरह से करते हैं, डिनोमिनेटर को रिपीट करेंगे। 1/√a
को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब न्यूमरेटर से भी रूट ए एंड डिनोमिनेटर से भी रूट ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, रूट ए डिनोमिनेटर है, हम उसे न्यूमरेटर में भी अब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी रूट ए रिटर्न करेंगे। दैट इज कॉल्ड रेशनल आंसर। रूट ए इंटू 1 रूट ए, या रूट ए इंटू रूट ए स्क्वायर। ओके, यू कैन जस्ट अब एक एग्जांपल से भी कन्विंस करते हैं। 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, हम इसी केस में रेशनलाइज करेंगे। 1 बाय रूट 3, अब हम क्या करेंगे, रूट 3 बाय रूट 3 रिटर्न करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो रूट 3 इंटू रूट 3। नाउ रूट 3 बन जाओ रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9। ओके, सो रूट 3 square root of 9 is 3. This is our answer. So these were the topics which we have to cover in this chapter. So I hope that it would be clear completely. There is no any doubt. इसे आप माइंड में फिक्स करें, because these are the topics which we are going to cover in this chapter and which we have to do one by one. So let's meet you in my next video. Till then, bye bye.